نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ نے جیسا کہ سوال کیا ہے، یہ بچپنے کی کچھ یادیں میرے ذہن میں ابھی باقی ہیں۔ میرا نام محمد علی مصباحی ہے۔ میرے والد صاحب کا نام مولانا عابد حسین صاحب وطن۔ میری جائے پیدائش ضلع رامپور، تحصیل سوار، قصبہ مسواسی سے قریب میں مزرعہ خوشحال پور ایک دیہات پر، اسی میں 1964 میں میری پیدائش ہوئی۔ گاؤں کا ماحول اس وقت میں ایسا تھا کہ قریب میں قصبہ مسواسی ہے جی، اس میں دین کا لگاؤ بہت سے لوگوں کو نہیں تھا۔ گاؤں کے حالات یہ تھے کہ پورے گاؤں میں پڑھے لکھے سے میرے والد صاحب تھے، ماشاء اللہ، مولانا عابد حسین صاحب، سبحان اللہ۔ اب انہوں نے گاؤں کے لوگوں کے ترغیب دلائی چیز کرنا، کوئی مدرسہ کام کیا ہے تو اس کی جگہ بھی تلاش ہو گئی۔ ایک صاحب نے، حاجی محمد حسین صاحب تھے، انہوں نے اپنا ذاتی باغ مدرسے کے لیے دیا، مدرسے کا نام رکھا مدرسہ شان محمد، سبحان اللہ۔ اسی کے اندر میری تعلیم ابتدائی ہوئی، قائد بغدادی سے لے کر ناظر قرآن پاک، کچھ اساتذہ وہاں تھے۔ اس کے بعد پھر درجہ حفظ وہی ہم نے شروع کیا، پھر وہاں سے ہم کاشی پور پہنچے درجہ حفظ کے لیے۔ جب پورا قرآن پاک ہمارا حفظ ہو گیا، ہم نے گاؤں میں قرآن پاک ہم نے سنایا۔ پھر وہاں سے ہم جامعہ فاروق عزیز العلوم 1980 میں ہم پہنچے، 1980 میں ہم پہنچے۔ اعدادیہ، اولا، ثانیہ، یہاں پر ہمیں یہ 3 جماعتیں اور کلاس تعلیم حاصل۔ اس دور میں حضرت علامہ محمد خورشید صاحب مصباحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہمارے استاد ہوا کرتے تھے درس نظامی کے، اور درس قرأت کے اندر قاری علی حسین صاحب کشن پوری رامپوری وہ تھی۔ میں ان دونوں سے بڑا متاثر رہا ہوں۔ پھر یہاں سے ثالثہ کے لیے ہم سنبل پہنچے، تو جامع مسجد ہے سنبل کی اس وقت میں، تو ثالثہ جماعت مکمل ہم نے وہیں پڑھی، اسی مسجد کے پورا سال وہاں پر ہوا۔ رابعہ جماعت کے لیے علامہ مبارک صاحب اور ہم مبارک پور حجامت الشبیہ عربک یونیورسٹی مبارک پور ہم چلے، تو رابعہ، خامسہ، سادسہ، ثامنہ، یہ ساری جماعتیں ہم نے وہیں سے فراغت ہم نے حاصل کی۔ ان دنوں میں یہ چند سال جو ہمارے گزرے ہیں، یہ تو تعلیمی مراحل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے قدموں کے بوسے لے کر بڑے لطف اندوز ہوئے، اور زندگی کے اندر علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بڑے چار چاند لگے، بڑا اچھا لگا، وہ دور بڑا اچھا تھا سب وہ جی۔ دیکھیے، جامعہ فاروق عزیز العلوم میں جب رہتے تھے تو دونوں اساتذہ کا نام میں نے آپ کو بتایا۔ اب یہاں سے جب ہم مبارک پور پہنچے تو مبارک پور میں علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب محدث کبیر، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے، اور علامہ عبدالشکور صاحب، علامہ اسرار احمد صاحب، علامہ شمس الہدیٰ خان صاحب، بہت سے اساتذہ ہم لوگ تھے، مگر میں علامہ شمس الہدیٰ صاحب اور علامہ مصباحی صاحب کے بلا ان دونوں کے کمروں میں رہا ہوں، اور میں نے علامہ مصباحی صاحب کے بلا کے رات اور دن سب کچھ دیکھا، چونکہ خاص طور سے علامہ مصباحی صاحب کے بلا حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے بارگاہ کے پروردہ تھی، انہوں نے شب و روز حافظ ملت کے دیکھے، کہ خیر الاسقیاء کا نام جو ان کو دیا گیا ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ میں نے ان کی زندگی کے صبح و شام دیکھے ہیں، واقعی اللہ کا ولی ہے وہ، اور علم کا پہاڑ ہے، ہم اس سے متاثر ہوں۔ اصل میں دیکھیے، دیہات کے اندر کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی تعلیم میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، مگر میں نے اس معاملے میں اپنے والد صاحب کو اور والدہ محترمہ مرحومہ کو دیکھا کہ کہیں بھی کوئی پریشانی آ رہی ہے تو ان دونوں نے میرا ساتھ دیا، اور ایسا ساتھ دیا ہے کہ میری والدہ مجھ سے فرماتی تھی کہ بیٹا، اب میں نے جب بھوجپور بھیجا تھا وہ بھی حافظ ملت کا تھا،
اور मुबारक उन भेजा है तभी वो हाफिज मिलत का है। और हाफिज मिलत की दुआएं आपके साथ है, कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये मेरी वालदा के अल्फाज हुआ करते थे। अब हाफिज मिलत के नाम से तो वाकिफ नहीं थी, मगर बड़े मूल साहब के नाम से वो जानती थी, वो अल्फाज बोला करती थी। तो परेशानी आई, मगर मेरी वालिद और वालदा के दुआओं से सारी परेशानियां सब दूर। ऐसे कई मराहिल मेरे सामने आए। हमारे वालिद साहब चूंकि पढ़े लिखे थे, और मेरे अलावा दो भाई और भी थे, वो भी पढ़े लिखे थे। उन्होंने हमसे ये कहा था कि हम मजदूरी कर सकते हैं और आपको तालीम के अंदर कदम आगे बढ़ाना। माशाल्लाह। और सो इत्तेफाक ये है कि मेरे उन दोनों भाइयों का इंतकाल हो चुका है। उनकी दुआएं में आज भी उनकी मैं एहसास करता हूँ कि दुआओं का असर है, और मेरे वालिदैन का असर है, मेरे असातिज़ा का असर है इस चीज पर कि मुझे कैसी परेशानी आई अल्लाह ने उसको दूर कर दिया। हाँ, जब मैं जामिया फारूक अजीज उलूम पढ़ने के लिए आया था, तो हालात घर के नागुफ्ता भी थे, मगर अल्लामा खुर्शीद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मुझे बड़ी शाबाशियां दी। मेरी कमर पर उन्होंने हाथ रखा कि बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी परेशानी आती है तो खुर्शीद आपके सामने खड़ा हुआ, खुर्शीद बन के चमके आपके सामने। तो यही चीज मेरे उस्तादों की दुआ मेरे साथ रही। माशाअल्लाह। देखिए, इल्म नाहव हो या इल्म सरफ हो, कोई सा भी हो, इन सबको पढ़ने के बाद में पहुंचाया जाता है इल्म तफसीर और इल्म हदीस तक। जी जी। तो अल्लाह के करम से यह है कि मैंने उनको पढ़ा भी, पढ़ाया भी, मगर आज जो मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ वो तफसीर और हदीस, इन दो चीजों के अंदर इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि पढ़ते चले जाइए, रात चाहे पूरी हो जाए और उसमें तृष्णगी बाकी रहती है। असल में ऐसा हुआ, जब हम जब मुबारकपुर पढ़ते थे, हमारे कुछ साथियों में बड़े मशहूर साथी हैं, अल्लामा मुबारक साहब एडिटर महानामा शफिया, और एक अल्लामा नौशाद साहब जो आजकल वो अफ्रीका में रहते हैं। उनकी शादी हो गई, और चूंकि हम दोनों साथी थे, तो हमारे उस्ताद जो किरत के उस्ताद थे कारी अली हुसैन साहब और अल्लामा खुर्शीद साहब, इन दोनों ने मशवरा ये किया कि इस बच्चे का रिश्ता भी इस खानदान से कराया जाए। तो साहब उन्होंने हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान की जो छोटी साहबजादी हैं हमीदा अजीजी, जो मेरी खुश दामन है, उनकी बेटी है मकसूदा अजीजी, तो फरागत के फौरन बाद मेरी शादी उनसे तय हो गई, वो शादी हो गई। देखिए, आज की तालीम तहकीकी तौर से जो असरियात हैं, इस पर तलबा जो मेहनत कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, मगर अदब, एहतराम, तमद्दुन, ये सारी चीजें जो उस दौर में थी, मैं समझता हूँ आज के दौर में नहीं, आज के दौर में नहीं। उस दौर में तो ऐसा हुआ करता था, जो जामिया फारूकिया में हम जब पढ़ते थे, तो मुहर्रम की छुट्टी आई, बकरीद की छुट्टी आई, तो असातिज़ा से हम कहा करते साहब हम जाएं, बोला नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो त्योहार को भी हम मदरसे के अंदर रह जाते थे, और अब आलम यह है कि दरखास्त छुट्टी के 2 दिन पहले से ही तैयार हो जाती है और बच्चे अपने घरों को भागना शुरू हो जाते हैं। आज आलम ये है। असल में हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब हुआ यह था, उर्से हाफिज मिल्लत 2023 में, उर्से हाफिज मिल्लत से कुछ पहले, 1-2 महीने पहले मेरे 2 सफर हो गए। अच्छा। तो उस साल मैंने चाहा कि उर्से अजीजी में मैं ना जाऊं, घर के सारे लोग जा रहे हैं। अच्छा। फिर अहबाब ने टिकट भी बनवा दिया, फिर मैंने वो कैंसिल भी करा दिया, यार इस साल नहीं जा रहे। मगर अचानक जहन में आया कि नहीं, उसमें नागा नहीं होना चाहिए। वहां पर हुजूर अजीज मिल्लत क़िबला मदद अली, उन्होंने हमारे बच्ची से पूछा क्या मौलाना हनीफ साहब क्या नहीं आ रहे साहब, और इरादा तो ऐसी है कि शायद ना आए हो। बोला नहीं आएंगे, आएंगे। जब हुजूर अजीज मिल्लत जब स्टेज पर पहुंचे और सारे उलमा के दरमियान, हम भी स्टेज पर थे, उससे पहले कभी जाते भी थे, अपने असातिज़ा थे, टहलना वाला सब मुलाकात रहती थी। अचानक एक नाम आया कि मौलाना मोहम्मद हनी मिसबाही भोजपुरी मुरादाबाद ये तशरीफ लाए, तो खिलाफत तकसीम हो रही थी वहां पर।
تو हुजूर अज़ीज़ मिल्लत ने चादर लेकर हमारे गले में डाली और उन्होंने हमसे फरमाया कि मैं जितने भी हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान के खिलाफत नामे हैं और जो भी चीज़ से मुतालिक है मैं आपको दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्या बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला मुझे इस लायक बनाए। अब पीछे मिसबा साहब क़िबला थे, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला थे, वो देखकर मुझे मुस्कुराए अच्छा। किस अंदाज से। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा और अफ्रीका से और जगहों से मेरे साथियों के फ़ोन भी मेरे पास आए सब मुबारक। असल में मुबारकपुर से फरागत के बाद सबसे पहले मैं आया जामिया रज़विया कैमरी। उसके बाद 6 महीने के लिए जामिया अकरम नईमी इंस्टीट्यूट मुरादाबाद। फिर वहां से मैं 1 साल के लिए जसपुर में पहुंचा। वहां से 1990 में जामिया फारूक अज़ीज़ उलूम में मेरा तकर्रुर और मेरे उस्ताद खास अल्लामा खुर्शीद साहब क़िबला ने मुझे मशवरा दिया कि आप जामिया फारूकिया आप आइए, आपकी ज़रूरत है। तो 1990 से आज तक मैं यहाँ पर हूँ। अब मैं अपने सारे तलबा को यही पैगाम दूंगा कि वक्त का जो चैलेंज है उसके सामने आपको सीना सिपर रहना है। मेहनत जो है रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो कोशिश करेगा वो पाएगा और इस पर अहादीस बहुत ज्यादा है समझे। तो जितना पढ़ो उस पर अमल करो और खालिस ये नहीं खाली दिखावा हो, दिखावे से खालिस आपका कोई फायदा नहीं होगा। जो ज़माने के तकाज़े हैं उसके मुताबिक आप इल्म हासिल करें। जहाँ कुरान और हदीस की तालीम है वो भी आपके लिए ज़रूरी है कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। असरियात का ताल्लुक है कि हमारे इस्लाम के खिलाफ आज क्या क्या चैलेंज लोग दे रहे हैं। तो अपने तलबा से मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप उनका सही तौर से जवाब बनकर मैदान में उतरें। जज़ाकल्लाह हज़रत, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता और फरमाए। मुझे बहुत खुशी हुई है आपके इस चैनल के जरिए मेरी आवाज़ सारे तलबा तक पहुंचेगी, आवाम तक पहुंचेगी। बस आखिर में सबके लिए पैगाम दे रहा हूं कि आप इस दौर में जब जी रहे हो तो शरीयत इस्लामिया पर सही तौर से अमल कर लें। नमाज किसी टाइम की ना छूटे, आपस में भाईचारगी, अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत, वतन की मोहब्बत, यही हमारी कामयाबी की निशानी है।